velocity with respect to time is called acceleration. Let us consider an object having initial velocity u, final velocity v, in time t, its acceleration a, and it covers the displacement s. Again, a body having initial velocity u, final velocity v, displacement s, with acceleration a in time t. So what do you mean by acceleration? Change in velocity upon time. Change in velocity upon time. In this scenario, change in velocity v minus u upon t, cross multiply at equal to v minus u, v equal to u plus at. What is this? First equation for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Before this, acceleration, that is dv by dt, rate of change of velocity with respect to time, its SI unit, that will be equal to meter per second square, and CGS unit centimeter per second square. This is change in velocity upon time. If final velocity greater than initial velocity, A is positive. If we apply brakes to the vehicle, final velocity becomes less than initial velocity, A becomes negative. Negative acceleration, also known as retardation. Retardation means negative acceleration. राइट बेटा. अब एक्सेलरेशन जो है that further divided into three category. That one is uniform or constant acceleration, means equal change in velocity in equal interval of time. In equal interval of time. Second one is non-uniform or variable acceleration. Variable acceleration, in which equal change in velocity in unequal interval of time or unequal change in velocity in equal interval of time, that is non-uniform. And last one is average acceleration, that is total change in velocity upon total time. Right beta. Now we have to derive three equations of motion as that of class 9. This is the supposition. A body start with initial velocity u, its velocity change to v with constant acceleration a in time t, and displacement is s. In this case, we have to derive three equations, relation between u, v, a, t, s. By definition, acceleration is change in velocity upon time. Just cross multiply. At is v minus u, v equal to u plus at. What is this? This is known as first equation of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Right. बेटा इको अब भी आ रही है क्या? सभी अपना माइक ऑफ कर लें भाई.
अरे साउंड क्लियर है क्या? रिस्पॉन्स दो। ओके, क्लियर नहीं है? यस, ओके, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ वी हैव टू डिराइव सेकंड इक्वेशन। फॉर द सेकंड इक्वेशन, एज यू नो, वेलोसिटी चेंजेस, हमें पता है क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगा बेटा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। एवरेज वेलोसिटी क्या है? v प्लस यू बाई टू। टाइम क्या है बेटा? t। ध्यान दीजिए, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन। यूजिंग इक्वेशन 1, s क्या हो जाएगा? u प्लस 80 प्लस यू बाई टू इंटू टी। u प्लस यू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। ये कैंसिल हुआ, क्या आ गया बेटा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेल डन रितेश, उज्जवल, एकता, very good. This is the second equation for uniformly accelerated motion. Now third equation हमें डिराइव करना है। थर्ड इक्वेशन के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या? डिस्प्लेसमेंट इज बेटा इसको एक बार आप वीडियो को देखो, पेज नंबर आपको बाद में पता लगता रहेगा। ये आपका जो है, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसके अंदर है पेज 2/44। 2/44। ओके, सो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं होता। यूजिंग इक्वेशन 1, टी की वैल्यू बताइए क्या आया? दिस वन, v माइनस u बाई a। पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, s इक्वल टू v प्लस u बाई टू, v माइनस u बाई t, सॉरी a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस वन इज थर्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमने क्लास 9th में की हुई है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। सो अब हम इनको 3 मेथड से डिराइव करेंगे। ये है बेटा बाय डेफिनेशन, ठीक है। एक हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, एक हम करेंगे बाय इंटीग्रेशन। आज सिर्फ इसी के बेस पे करेंगे, वो आगे करेंगे, आगे इन द सेंस कल या परसों, राइट। तो ये थी हमारे पास इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज
3 मार्क्स में आपके पास आती है, यू हैव टू डिराइव एनी ऑफ द 3 1। तीनों में से कोई एक आपने इक्वेशन डिराइव करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें टू गेट 3 मार्क्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज वी हैव टू डिराइव इक्वेशन थर्ड। बिफोर this should be there, 3 lines should be there. क्या? Let a body having initial velocity u, its final velocity v, with constant acceleration a, in time t, it covers the displacement s. थर्ड इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कौन सा है। विच वन इज द थर्ड इक्वेशन? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. It means in that we have to determine displacement. Displacement simple velocity into time, but velocity is not uniform, इसलिए हम लिखेंगे average velocity into time. Uniformly accelerated में होता है velocity v average v plus initial plus final by 2 into time. तो बेटा थर्ड में टाइम नहीं होता, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि वहां तो गिवन नहीं होगी तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं। दिस मीन्स बिकॉज v इक्वल टू u प्लस AT, so t इक्वल टू v माइनस u बाई a. Put this value here, we get third equation. This is called third equation for uniformly accelerated motion. Third equation for uniformly accelerated motion. Right? आज हम एक इक्वेशन और डिराइव करेंगे, that one is SNH, distance covered in nth second. तीनों इक्वेशन देखिए। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बेटा मुझे 5th सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, कैसे निकालेंगे? 5th सेकंड में डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालें? यदि मैं यहाँ पे t की जगह 5 पुट करता हूँ, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड, बट मुझे तो ओनली 5th का चाहिए। फिर क्या करूं? पुट हेयर t इक्वल टू 4 सेकेंड। 5 सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 सेकंड का टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, 5 वाले में से 4 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकंड। Exactly on the same way, suppose we have to determine the displacement covered in 7th second. What is the procedure for uniformly accelerated motion? First put t equal to 7 in equation second, that will be the distance covered in 7 second. Similarly put t equal to 6 in the second equation, that is 6. What is this? This is distance covered in 7th second. तो क्यों ना हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएं फॉर द nth सेकेंड। nth सेकेंड क्योंकि एक का होना ही निकालना है। बेटा इसके लिए जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट इज SNH which is equal to SN minus SN minus 1, means total distance covered in n second minus distance covered in n minus 1 second. ये क्या आ जाएगा? ये आएगा बेटा SNH, means distance covered in nth second, distance covered in nth second. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड क्या आएगा? सेकंड इक्वेशन में t की जगह n रख दीजिए, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, और बेटा n माइनस 1 में क्या आएगा? t की जगह n माइनस 1 रख दीजिए, u
n minus 1 प्लस हाफ ए n minus 1 स्क्वायर, राइट। सोल्व कर लीजिए, un प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस a/2 n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। आई थिंक ये कैंसिल हुआ, u ये वाला दोनों में कॉमन क्या आ गया, a/2 क्या बच गया, n स्क्वायर माइनस अंदर जाने दो, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये कैंसिल हुआ। बोलो बेटा क्या आया, a/2 2n minus 1। what is this? This is the distance covered in nth second, distance covered in nth second, right? तो एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए बेटा, we have to find distance covered in nth second, means third, 7th, 11th, 12th या 15th सेकंड में चाहिए, कैसे आएगा? तो अब तक तो फार्मूला इन तीन के बेस पे तो यही था कि मुझे 17th सेकंड में चाहिए, तो 17 का टोटल निकालूं, 16 का टोटल निकालूं, 17 वाले में से 16 का सब्ट्रैक्ट करूं। बट यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जनरल फार्मूला बनाइए, Sn minus Sn minus 1, what is this? Snth, distance covered in nth second। तो टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड क्या आएगा, पुट द वैल्यू t इक्वल टू n इन सेकंड इक्वेशन, दिस वन, पुट द वैल्यू n minus 1 इंस्टेड ऑफ t, दिस वन, सोल्व किया, ये एज इट इज, इसको अंदर ले गए un माइनस u इंटू माइनस प्लस u माइनस अंदर a/2, इसको सोल्व किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, un गेट कैंसिल्ड, u एज इट इज, दोनों में कॉमन आ गया a/2, ये एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2n minus 1। यानी हम यहाँ से डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, सपोज ए बॉडी हैविंग 10 इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 4th सेकेंड, 4th सेकेंड का हमें चाहिए, तो सीधा ये फार्मूला आ जाएगा, S4 इक्वल टू U बोले तो 10, A बोले तो 2, N बोले तो 4 माइनस 1, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 प्लस 10 17 क्या मीटर। नहीं समझ में आया? यदि हम उस इक्वेशन से निकालते सेकंड से, तो सेकंड में देखो बेटा, S4 4 सेकंड का डिस्टेंस क्या आता, U 10 T 4 एक्सेलरेशन 2 इंटू में T स्क्वायर 16 14 16 30 मीटर। व्हाट अबाउट S3, U 10 3 1/2 इंटू 2 इंटू 9 30, सॉरी भैया 40 प्लस 16 है ये 56, जेंटलमैन 40 प्लस 16, ठीक है, ओके। 40 10 इंटू 4 40 प्लस 16 36, तो बेटा 30 प्लस 9 हाउ मच 39, तो बेटा 56 में से 39 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 17, तो इसमें तो 2 स्टेप लेना पड़ा, इसमें सिंगल फार्मूले से आपके पास आंसर आ जाएगा। बताइए सबको क्लियर है क्या ये?
बेटा ये फोर्थ इक्वेशन समझ में आया क्या? अरे 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया, फास्ट यार, जल्दी से। उमा, सौरव, एकता, नेहा, यूनिक, छवि, पलक, भूमिका, फास्ट फास्ट। और भी पेंडिंग है, यस और नो? आगे रिस्पॉन्स नहीं है भाई। साहिल, शिवम, रचित, रेणु, युवराज, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। सो SNF इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे SNF इज इक्वल टू U प्लस A बाई 2 2n माइनस 1। अब इस पे बेस्ड आप देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है। क्वेश्चन सुनिए। ऑन टर्निंग ए कॉर्नर, मोटरिस्ट रसिंग एट 44 मीटर पर सेकेंड। एक मोटरसाइकिलिस्ट टर्न करता है, उसका स्पीड है 44 मीटर पर सेकेंड, राइट? ओके, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी है। फाइंड ए चाइल्ड ऑन द रोड 100 मीटर अहेड। बेटा 100 मीटर डिस्टेंस पे वो एक बच्चे को देखता है। He instantly stops the engine, applies the brakes. हैं? इसको आउट कर दे, कौन है ये तेरा? ये प्रीति, कमेंट आ रहा आपकी तरफ से, किसका नंबर मांगने लग रहे हो? क्लास पे ध्यान दो। He instantly stops the engine and applies the brake as to stop it within 1 meter of the child. इंजन बंद करता है, ब्रेक लगाता है लड़के से 1 मीटर पहले। 1 मीटर पहले का मतलब बाइक ने डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा? 99। ओके, कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप, आपको टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। 1 मीटर पहले रुक जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0। अब देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन यूज करें? देखिए, सेकंड यूज करता हूं तो वहां प्रॉब्लम ये है, मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। थर्ड यूज करता हूं, उसमें टाइम नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करूं? थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v बोले तो 0, u बेटा 44 इंटू 44 u स्क्वायर हो गया, a निकालना है 99। a क्या आया? -44 44 2 इंटू 99, राइट? 2 से गया बेटा 22, 11 से 2, 11 से 9, that one is -88 by 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन मीन्स यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, राइट? अब हमें निकालना है टाइम। टाइम के लिए इक्वेशन कौन सा लूं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। क्या? v इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है बेटा? 0। u क्या है बेटा? 44। a क्या है? -88 by 9। टाइम निकालना है, तो 88 by 90 इक्वल टू 44। t इक्वल टू 9 इंटू 44 by 88,
दैट इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। आंसर क्या आया बेटा? 4.5 सेकेंड। क्लियर? तो ये आपके पास था। इसी तरीके से आगे सुनिए क्या कहता है। ओ यस, a body starting from rest. Question number 13. Body starting from rest means u equal to 0. Observe to cover 20 meter in 1 second, 40 meter during the next second. चलो इससे पहले सिंपल ले ले एक बार। देखिए, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ and is found to travel 44.1 meter in last second before it reaches the ground. क्या कहता है? स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, ड्रॉप का मतलब बेटा u0, ओके, and was to observe that it found 44.1 meter in last second. लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 44.1 मीटर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। आपको क्लिफ का हाइट बताना है। क्वेश्चन दोबारा, एक बंदा जो है टॉप ऑफ द क्लिफ से रिलीज करता है स्टोन, एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड टू ट्रेवल सच मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो फ्री फॉल जो है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड वर्टिकली अपवर्ड थ्रो अपवर्ड मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होता है? जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड यदि मोशन है तो -9.8 क्योंकि रिटार्डेड मोशन होएगा। और यदि आपके पास कई बार क्या करता है 9.8 की बजाय वो बोल देता है यू कैन कंसीडर a इक्वल टू 10, गिवन नहीं है तो 9.8 लेंगे। अब देखिए यहां इसने कहा इट वाज ऑब्जर्व टू कवर सच डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड। तो सपोज कर लेते हैं nth सेकेंड जो है वो लास्ट सेकेंड है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? 9.8। तो हमें क्या निकालना है? विच सेकेंड इज द लास्ट? कौन सी लास्ट सेकेंड है? तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है, 10वीं है, 15वीं, कितनी सेकंड में ये नीचे आएगा? राइट। तो उसके लिए हम क्या करें? SNF गिवन है तो फोर्थ इक्वेशन लेंगे। SNF हाउ मच? 44.1। इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच? 0। एक्सेलरेशन 9.8 बाई 2, 2n minus 1, 4.9, 2n minus 1, 44.1, डेसिमल से डेसिमल गया बेटा 9 आ गया होगा। n की वैल्यू 5, एक मिनट, n इक्वल टू 5। तो इसका मतलब बेटा 5th सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब बेटा 5 सेकेंड में ये नीचे आया। 5 सेकेंड में नीचे आया, कितना डिस्टेंस कवर किया? आप टोटल डिस्टेंस निकाल ले सेकेंड इक्वेशन से। u 0, एक्सेलरेशन 9.8, t स्क्वायर 25, 4.9, 122.5 मीटर। आज आपने इस पे बेस्ड पहले तो चारों इक्वेशन